हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हरियाणा के एजुसेट चैनल पर। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2। अर्लियर इन पार्ट 1 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स etc. This part is also very interesting. Listen carefully. So, let's start. आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में जानना, प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की जानकारी और पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स की स्टडी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के भाग 1 में हमने पिक्चर में दिखाए गए एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जाना था कि स्लरी को चीज़ क्लॉथ या कॉटन की मदद से छानने के बाद 2 फ्रैक्शंस प्राप्त होते हैं। एक फ्रैक्शन जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डिजोल्व हो जाता है, जिसे फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल पूल कहा जाता है, और दूसरा फ्रैक्शन या अंश जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डिजोल्व नहीं होता, इसे हम रिटेंटेट या एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं फिल्ट्रेट और रिटेंटेट में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट और एसिड सोल्यूबल पूल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एमिनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस etc. Inorganic compounds like sulfate and phosphate are also present in acid soluble pool. Components present in retentate or acid insoluble pool are proteins, nucleic acids like DNA and RNA, polysaccharides and lipids. Filtrate or acid soluble pool. Compounds found in the acid soluble pool have molecular weights ranging from 18 to around 800 Daltons approximately. Retentate or acid insoluble fraction. Acid insoluble fraction has only 4 types of organic compounds, that is proteins, nucleic acids, polysaccharides and lipids. These classes of compounds, with the exception of lipids, have molecular weights in the range of 10,000 Daltons and above. बच्चों, एसिड सोल्यूबल पूल्स में जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनका मोलिकुलर वेट 18 से 800 डाल्टन्स तक होता है, जबकि जो कंपाउंड्स हमें रिटेंटेट या एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलते हैं उनका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। रिटेंटेट में हमें 4 टाइप्स के कंपाउंड्स मिलते हैं, जो हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, polysaccharides और lipids. Dear students, on the basis of molecular weight, biomolecules can be placed in 2 groups. Number 1, biomicromolecules and number 2, biomacromolecules. The compounds with molecular weight 18 to 800 Dalton are placed under the category biomicromolecules, and the compounds with molecular weight 10,000 Dalton and above placed under the category biomacromolecules. बच्चों, जिन कंपाउंड्स का मोलिकुलर वेट 18 से 800 डाल्टन या फिर हम कह सकते हैं 1000 डाल्टन से कम होता है, उन कंपाउंड्स को हम बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं, और जिन कंपाउंड्स का मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होता है उन्हें हम बायो
मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। कंपाउंड्स which have molecular weights less than 1000 Dalton are usually referred to as micromolecules or simply biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fraction are called macromolecules or biomacromolecules. The molecules in the insoluble fraction, with the exception of lipids, are polymeric substances. Then why do lipids whose molecular weights do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction? Lipids are indeed small molecular weight compounds and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes. When we grind a tissue, we are disrupting the cell structure. Cell membrane and other membranes are broken into pieces and form vesicles, which are not water soluble. Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction. Lipids are not strictly macromolecules. Dear students, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं उनमें सिर्फ लिपिड्स ऐसे हैं जिनका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है, फिर भी ये हमें इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, जिसमें और दूसरे कंपाउंड्स मैक्रोमोलिकुलर होते हैं। ऐसा क्यों? बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिपिड्स वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। दूसरा, जब हम टिश्यू की ग्राइंडिंग करते हैं तो हम सेल स्ट्रक्चर्स को तोड़ते हैं और इन लिपिड्स से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है जो टूटने के बाद वेसिकल्स फॉर्मेशन करती है और ये वेसिकल्स वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। इसलिए ये मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स वेसिकल्स की फॉर्म में एसिड इनसोल्यूबल पूल में ही मिलते हैं। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसका मतलब है बच्चों, लिपिड्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में नहीं रखते क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। इन्हें हम माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। Proteins are polypeptides. They are linear chains of amino acids linked by peptide bonds. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स द्वारा एक दूसरे से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, जिससे प्रोटीन बनता है। Each protein is a polymer of amino acids. As there are 21 types of amino acids. Example given: alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine, etc. A protein is a heteropolymer and not a homopolymer. A homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times. बच्चों, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि होमोपोलीमर सिर्फ एक ही प्रकार के मोनोमर से बना होता है, जबकि प्रोटीन एक ऐसा पॉलीमर है जो 21 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसलिए प्रोटीन एक हेट्रोपोलीमर है। नाउ लेट अस सी functions of proteins. Proteins carry out many functions in living organisms. Some transport nutrients across cell membrane. Some fight infectious organisms. Some are hormones.
some are enzymes, etc. कुछ प्रोटीन्स तथा उनके फंक्शंस टेबल में दिए गए हैं, जैसे कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इसके अलावा प्रोटीन सेंसरी ऑर्गन्स में रिसेप्टर का कार्य करता है। GLUT4 एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो सेल्स में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। It is interesting to know that collagen is the most abundant protein in the animal world and ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase Rubisco is the most abundant protein in the whole of the biosphere. बच्चों, कोलेजन प्रोटीन जंतुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा होता है तथा पूरे जैवमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन रूबिस्को है, जो एक एंजाइम है। ये एंजाइम फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। बायोलॉजिस्ट्स डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 levels: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड quaternary structure. Primary structure: the sequence of amino acids, that is the positional information in a protein, which is the first amino acid, which is second, and so on, is called the primary structure of a protein. In this diagram you can see that various amino acids are linked by bonds named peptide bonds. If we represent a polypeptide through a straight line, then the amino acid residue on one end has an amino group on the alpha carbon. This amino acid residue is called the N-terminal of the peptide. The amino acid residue on the other end has a carboxylic acid group on the alpha carbon. This amino acid is called the C-terminal. बच्चों, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, अगर हम पॉलीपेप्टाइड को एक स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट करें तो उसके राइट हैंड साइड पे जो एमिनो एसिड होता है उसको हम C-terminal रेजिड्यू बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जो एमिनो एसिड रेजिड्यू होता है उसको हम N-terminal रेजिड्यू बोलते हैं। और एक पॉलीपेप्टाइड में अलग अलग एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर्स that form within a polypeptide due to interactions between atoms. The most common types of secondary structures are alpha helix and beta plated sheet. It is important to know that proteins एक स्ट्रेट चेन की तरह नहीं होते, बल्कि ये एक कुंडली की तरह मुड़े होते हैं और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स पॉलीपेप्टाइड के एटम्स के बीच इंटरेक्शंस के कारण बनते हैं, जिन्हें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट मोस्ट कॉमन टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। बोथ स्ट्रक्चर्स आर हेल्ड इन शेप बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स which form between the carbonyl oxygen of one amino acid and the amino hydrogen of the another. आइए अब देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। The overall three-dimensional structure of a polypeptide is called its tertiary structure. पॉलीपेप्टाइड का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट प्रोटीन्स के
टर्सरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए होलो वुलन बॉल, गिविंग राइज टू द टर्सरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की लंबी चेन अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। द टर्सरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली ड्यू टू इंटरेक्शंस बिटवीन द R ग्रुप्स ऑफ द एमिनो एसिड्स दैट मेक अप द प्रोटीन। मीन्स एमिनो एसिड्स के R ग्रुप्स में इंटरेक्शन के कारण प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स। बच्चों, प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए इसका टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 4 इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। मैनी प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन and have only 3 levels of structure. However, some proteins are made up of multiple polypeptide chains, also known as subunits. When these subunits come together, they give the protein its quaternary structure. जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे के पास आते हैं तो इन पॉलीपेप्टाइड्स का अरेंजमेंट प्रोटीन्स के क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 subunits. 2 of these are identical to each other, hence 2 subunits of alpha type and 2 subunits of beta type together constitute the human hemoglobin. डियर स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमारी बॉडी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड अल्फा टाइप की और 2 पॉलीपेप्टाइड बीटा टाइप की होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। और ये चारों सब यूनिट्स मिलके कंप्लीट हीमोग्लोबिन बनाती हैं। आइए अब जानते हैं नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स। द एसिड insoluble pellet also has polysaccharides, means carbohydrates, as another class of मैक्रोमोलिक्यूल्स। केमिकल कंपाउंड एनालिसिस एक्सपेरिमेंट में रिटेंटेट या एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में पॉलीसैकेराइड भी प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। दे आर थ्रेड्स, लिटरली ए कॉटन थ्रेड containing different monosaccharides as building blocks. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, that is glucose. Cellulose is a homopolymer. पॉलीसैकेराइड्स की लॉन्ग चेन मोनोसैकेराइड्स शुगर से मिलकर बनी होती है। उदाहरण के तौर पर सेलुलोज एक होमोपोलीमर है जो एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड्स दैट इज ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक। Starch is a variant of this, but present as a storehouse of energy in plant tissues. Animals have another variant called glycogen. Inulin is a polymer of fructose. In a polysaccharide chain, say glycogen, the right end is called the
reducing end and the left end is called the non-reducing end. बच्चों, पौधों और जंतुओं में पॉलीसैकेराइड्स अलग अलग फॉर्म में मिलता है और इसके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। जैसे प्लांट सेल्स में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड ही होता है जो प्लांट्स में स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी का काम करता है। एनिमल्स में ग्लाइकोजन मिलती है। इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। In fact, starch can hold iodine molecules in the helical portion. The starch iodine is blue in color. Cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold iodine. इसलिए हम स्टार्च को आयोडीन टेस्ट द्वारा जांच सकते हैं और सेलुलोज को आयोडीन टेस्ट द्वारा नहीं जांच सकते। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जब आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च के सैंपल में मिलाया जाता है तो इसका कलर डार्क ब्लू हो जाता है। इस टेस्ट द्वारा हम बता सकते हैं कि दिए गए सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है या एब्सेंट है। नाउ लेट अस सी कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर। They have building blocks, amino sugars and chemically modified sugars. Example given: glucosamine, N-acetyl galactosamine, etc. बच्चों, प्रकृति में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं। ये एमिनो शुगर्स और मॉडिफाइड शुगर्स जैसे ग्लूकोसामीन, N-acetyl गैलेक्टोसामीन से बने होते हैं। एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जाम्पल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन। आर्थ्रोपोड्स जैसे स्कॉर्पियन और कॉकरोच का आउटर प्रोटेक्टिंग कवर एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड काइटिन से बना होता है। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्टली होमोपोलीमर्स। आइए अब देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन ए पॉलीसैकेराइड। इन ए पॉलीसैकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय ए glycosidic bond. This bond is formed by dehydration. This bond is formed between two carbon atoms of two adjacent monosaccharides. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स के दो कार्बन एटम्स के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। इस रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर दी बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स essential to all known forms of life. These are polynucleotides. बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल और इम्पोर्टेंट होते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसका अर्थ है कि न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, these comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or cell. Nucleic acids are of two types. First type is DNA and the second type is RNA. For nucleic acids, the building block is a nucleotide. A nucleotide has three chemically distinct components. One is a heterocyclic compound, the second is a monosaccharide and the third is a phosphoric acid or phosphate. As you can see in the diagram, न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकंड एक मोनोसैकेराइड
और थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। The heterocyclic compound in nucleic acids are the nitrogenous bases named adenine, guanine, uracil, cytosine and thymine। न्यूक्लियोटाइड में जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो एक नाइट्रोजिनस बेस होता है। न्यूक्लिक एसिड्स 5 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं, जो हैं एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन। एडिनिन एंड गुआनिन आर substituted purines while the rest are substituted pyrimidines. Strings of nucleotides are bonded to form helical backbones, typically one for RNA, two for DNA. The sugar found in nucleotides is either ribose, a monosaccharide pentose, or 2'-deoxyribose. A nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid or DNA, while that which contains ribose is called ribonucleic acid, or we can say RNA. Now let's discuss secondary structure of DNA. One of the secondary structures exhibited by DNA is the famous Watson-Crick model. This model says that DNA exists as a double helix. बच्चों, वाटसन और क्रिक ने डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया तथा उन्होंने बताया कि डीएनए डबल हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन सुगर फॉस्फेट सुगर से बनी होती है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजन बेसिस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एडिनिन और थाइमिन के बीच 2 तथा साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। You can see double-stranded polynucleotide chain in the picture. Dynamic state of body constituents. Concept of metabolism. The flow of metabolites through a metabolic pathway at a definite rate and in a definite direction is called the dynamic state of the body constituents. One of the greatest discoveries ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover. This means that they are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecules. This breaking and making is through chemical reactions constantly occurring in living organisms. Together, all these chemical reactions are called metabolism. बच्चों, हमारे शरीर में बायोमोलिक्यूल्स बनते और टूटते रहते हैं। एक प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स से दूसरे प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स बनते रहते हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स के बनने और टूटने की रिएक्शंस बॉडी में कंटिन्यूसली चलती रहती हैं और इन सभी रिएक्शंस को मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ये सभी एंजाइम्स की हेल्प से होती हैं, क्योंकि एंजाइम्स इन रिएक्शंस के रेट या स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे हमें जितने अमाउंट में बायोमोलिक्यूल्स या प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है वो उतनी ही स्पीड से हमारी बॉडी में बनते या टूटते रहते हैं। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। डियर स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक पाथवेज आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 एनाबॉलिक पाथवेज एंड नंबर 2 कैटाबॉलिक पाथवेज। बच्चों, मेटाबॉलिक पाथवेज
दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है एनाबॉलिक पाथवे और दूसरा होता है कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवेज आर दोज दैट रिक्वायर एनर्जी टू सिंथेसाइज लार्जर molecules, while catabolic pathways are those that generate energy by breaking down larger molecules. एनाबॉलिक पाथवेज में छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि कैटाबॉलिक पाथवेज में बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कैटाबॉलिक पाथवेज में एनर्जी जनरेट होती है या हम कह सकते हैं एनर्जी लिबरेट होती है। बोथ टाइप्स ऑफ पाथवेज आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द सेल्स एनर्जी बैलेंस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट form of energy currency in living system is the bond energy in a chemical called adenosine triphosphate और ATP। बच्चों, किसी भी लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी करेंसी उसके ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन ATP मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स में एनर्जी ट्रैप होती है। जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो उससे एनर्जी लिबरेट होती है और अपनी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल्स इन ATPs को यूटिलाइज करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2 समझ में आया होगा और आपको यह इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।